Hello everyone, welcome back in this channel. The subject is same transportation engineering. Unit is running, that is unit 2 railway engineering, and a part of railway engineering, that is 2.4 branching of tracks. In branching of tracks, one videos in the sense the previous videos is fully attached by branching of tracks. First of all, we have to clear that branching of tracks means that a branch of tracks. Branch of tracks means a track is defined in a number of ways, that is crossing, turn out, uh, left turn, right turn, etc. That's why we conclude the definition of point and crossing and a turnout also in our first part of the branching of tracks videos. This is the second part of branching of tracks videos, and the 30th videos of transportation engineering unit 1 and unit 2 combined. Okay, now before we enter in our core core subject, that is transportation engineering in branching of track, one thing is very important, and the notice is that please confirm your attendance in only on comment box. Okay, because again I repeat the same word and same sentence, that please confirm your attendance in comment box. In live chat that disappeared after a live session or premiere session is end. That's why we I have much more many uh, difficulties face. Okay, that's why please confirm your attendance in only on comment box. Okay, तो हम अगर बात करें कि इस पूरे टॉपिक का, in our last videos we conclude or we end up and in the facing of direction, trailing direction and point. Okay, now the next one is tongue rail. What is tongue rail? It is a tapered movable rail made a high carbon or a manganese steel to withstand wear. At its thicker end, it is attached to a running rail. A tongue rail is also known as switch rail. टंग रेल के बारे में बोल रहा है, ये टैपर्ड होता है मूवेबल रेल में. मतलब रेल किसको बोलते हैं? अच्छे तरीके से हम पहले भी बता चुके हैं कि रेल ट्रैक को बोलते हैं, न कि ट्रेन को. ट्रेन रेल पे चलती है ना, रेल पटरी, उसी को बोलते हैं रेल. किससे बना हुआ रहता है ये? हाई कार्बन से या मैग्नीज स्टील से. ठीक है, ओके. इट कंसिस्ट ऑफ अ मैग्नीज स्टील टू विथस्टैंड वियर एंड टीयर, मतलब खरोच लगना. समझ ले, तो समझ रहे हैं ना. विथस्टैंड वियर एंड टीयर मतलब क्या होता है? जो एक स्टील को उम्दा किस्म का बना रहा होता है. एट इट्स थिकर एंड, थिकर मतलब थिन नहीं है, थिन मतलब पतला, थिकर मतलब मोटा होता है. इट इज़ अटैच टू अ रनिंग रेल. रनिंग रेल मतलब एक ट्रेन के पटरी के से दूसरा ट्रेन के पटरी को ज्वाइंट जहाँ पर होता है, तो रनिंग रेल मतलब एक डेस्टिनेशन तक, ऑरिजिन से. अ टंग रेल इज ऑल्सो नोन एज स्विच रेल. स्विच रेल भी, स्विच रेल के नाम से भी जाना जाता है. किसको? टंग रेल से. नेक्स्ट वर्ड है स्टॉक रेल. व्हाट इज स्टॉक रेल? इट इज़ द रनिंग रेल अगेंस्ट विच अ टंग रेल ऑपरेट्स. टंग रेल जो ऑपरेट्स होता है उसके अगेंस्ट में, उसके अगेंस्ट में कौन सा यूज होता है? स्टॉक रेल. ओके, नाउ नेक्स्ट वन, switch angle. Angle between the gauge face of the stock rail and the tongue rail at the theoretically toe of switch. Throw of switch होता है क्या? Distance by which the tongue rail moves laterally at the toe of switch. एक्चुअली क्या होता है, ये सब जितने सारे वर्ड हैं आपको अजीब लग रहे होंगे. क्यों अजीब लग रहे होंगे? क्योंकि आप लोग अब आज तक इसके बारे में सुने ही नहीं है. बस ट्रेन पे चढ़े और चल दिए, जहाँ पे जाना है वहाँ पे उतर गए. तो इसलिए आपको इस चीज़ के बारे में जानकारी बिल्कुल कभी सुने ही नहीं होंगे. व्हाट इज़ स्विच एंगल, व्हाट इज़ थ्रो ऑफ स्विच, व्हाट इज़ टंग रेल, व्हाट इज़ स्टॉक रेल, है ना. लेकिन हमें पढ़ना है, इसलिए हम लोगों को बारी बारी करके इसको डिस्कस कर रहे होंगे, है ना. एंगल बिटवीन द गॉज फेस. गॉज के बारे में तो आप जानते हो, व्हाट इज़ गॉज डिस्टेंस, है ना. गॉज के बारे में क्या जान रहे हैं? जो दो पटरी होता है उस दोनों के बीच की डिस्टेंस मेंटेन करना, जिसको हम लोग बोलते हैं पी वे. पी वे डायरेक्टली स्टैंड्स फॉर परमानेंट वे. परमानेंट वे में क्या होता है? ब्लास्ट होता है, एग्रीगेट होता है. Aggregate, black aggregate is also known as blast, in which we have subgrade, we have fixers, we have fastenings, we have rails, and that combination of whole things is known as P way, that is permanent way. Okay, now next one,
Next one is very important part of branching of track, that is crossing. Whenever a track is turned to another way, or a two-way train are coming from in front to each other, then a crossing rail or crossing track is very beneficial, or very important for the that rail. Okay, now what is the definition of crossing rail? How we define the crossing rail? Then a simple definition is that a crossing is the device introduced at the junction where two rails cross each other to permit the wheel flange of a railway vehicle to pass from the track to another. इट मीन्स वही अभी हम जस्ट बात कर रहे थे कि दो ट्रेन जब क्रॉस करती है तो किसके सहारे? क्रॉसिंग रेल के सहारे। ऐसा थोड़ी है उस पटरी पे रुक जाता है, फिर वो दूसरा डिरेल होता है, फिर तीसरे स्टेप में दूसरा जो ट्रेन है वो जा रहा होता है, फिर वो डिरेल से ऊपर होता है। इस तरह का कोई केस नहीं है। क्या केस होता है? अगर एक ट्रैक में दो ट्रेन आ रही होती है तो विद द हेल्प ऑफ अ क्रॉसिंग ट्रैक और विद द हेल्प ऑफ क्रॉसिंग रेल we maintain each and every train or each and every vehicle wagon it continuously from origin to destination। मतलब बिना किसी एक दूसरे को डिस्टर्ब किए बिना हम दोनों ट्रेन को पास करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्रॉसिंग रेल। ओके, नाउ next one, this one is the figure of crossing rails. This picture shows a number of meanings according to the crossing rails. These two rails, two types of track you seen, that how the crossing is not disturb any train or any two train or any three train. That crossing is very important part of a railway engineering. Now switches component, that is crossing component, and now the point is switches components. A set of points or switches consist of a following main constituents: a pair of a stock rail. What is stock rail? We already discussed. What is tongue rail? We have already discussed the both rail, tongue rail or stock rail. First of all, also known as switch rails. A tongue rail is also known as switch rails, made of a medium manganese steels with a strength of wear. The power of switch rail or tongue rail is much lesser than the that type of rail which have manganese steel to withstand wear. This is the medium manganese steel to withstand the wear. The tongue rails are machined to a very thin section to obtain a sunk fit with the stock rail. The tapered end of the tongue rail is called to the toe and the thicker end is called the hill. मतलब जो टैपर्ड है, टैपर्ड मतलब क्या? जो संकीर्ण होते जा रहा है, मतलब बड़ा से छोटा, ठीक है ना, जिसको आप बोल रहे होगे सिकुड़ना। द टैपर्ड रेल, टैपर्ड एंड ऑफ द टंग रेल इज कॉल्ड क्या होता है? टो। और क्या होता है? जो थिकर एंड इज कॉल्ड हिल। हिल किसको बोलते हैं? जो फैला हुआ, जो बड़ा है। थिकर मतलब थिन और थिक में अंतर है। थिक मतलब मोटा और थिन मतलब पतला, ठीक है। और टो किसको बोलते हैं? जो टैपर्ड होता है, जो संकीर्ण होते जा रहा है, ठीक है। और हिल किसको बोल रहे हैं? जो थिकर होता है, राइट। आगे बढ़ते हैं। स्विचेज, व्हाट वी मीन बाय स्विचेज? देन अ पेयर ऑफ हिल ब्लॉक विच होल्ड द हिल ऑफ द टंग रेल is held at the standard clearance or distance from a stock rail. A number of slide chairs to support the tongue rail and enable its movement towards or away from the stock rail. Two or more stretcher bars connecting both the tongue rails close to the toe for the purpose of holding them at the fixed distance from each other. A gauge tie plate to fix gauge and ensure correct gauge at the points. मतलब एक पेयर होता है हिल का। अब हिल क्या होता है? अभी जस्ट बताएं। हिल क्या होता है कि थिकर पॉइंट को हम हिल बोलते हैं, ठीक है। टो किसको बोलते हैं आप? जो टैपर्ड पॉइंट होता है, राइट। तो ये हिल ऑफ द टंग रेल इज हेल्ड एट द स्टैंडर्ड क्लियरेंस। स्टैंडर्ड क्लियरेंस मतलब जितना उसको सफिशिएंट क्लियरेंस की जरूरत होती है उसके बारे में जिक्र कर रहा है ये। अ नंबर ऑफ स्लाइड चेयर टू सपोर्ट द टंग रेल। टंग रेल को चेयर के माध्यम से हम क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं। मूवमेंट टुवर्ड्स और अवे मतलब इनेबल करते हैं कि आगे पीछे होने के लिए, राइट। ये सब डेफिनेशन है, ये सब पार्ट है किसका? टाइप्स ऑफ स्विचेस। दो तरह के स्विच होते हैं, स्टड स्विच और स्प्लिट स्विच। व्हाट इज स्टड स्विच एंड व्हाट इज स्प्लिट स्विच एंड व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन स्टड एंड स्प्लिट? दिस इज द डेफिनेशन। नो सेपरेट टंग रेल इज प्रोवाइडेड एंड सम पोर्शन ऑफ द ट्रैक इज मूव्ड फ्रॉम वन साइड टू द अदर साइड इज कॉल्ड स्टड स्विच। व्हाट इज स्प्लिट स्विच?
These consist of a pair of stock rail and a pair of tongue rail. These are two types. अब देखो स्प्लिट भी दो तरह के होते हैं, लूज हिल टाइप और फिक्स्ड हिल टाइप. फिक्स्ड मतलब अब वो इधर उधर नहीं हिलेगा, और लूज मतलब वो इधर उधर हिल सकता है, राइट. लूज हिल टाइप क्या होता है? इन दिस टाइप ऑफ स्प्लिट स्विच द स्विच और टंग रेल finishes at the hill of the switch to enable movement of the free end of the tongue rail. The fist split. What is fist split? Fist split is already discussed in previous videos. है ना, 1 or 2 or 3 or 4 videos we have discussed the fist splits. What is fist splits? How it holds the rail. है ना, holding the tongue rail may be straight or slightly bent. थोड़ा सा बेंट हो जाता है, बेंट करने पे फिस्ट प्लेट्स वगैरह लगाते हैं. द टंग रेल इज फास्टेंड टू द स्टॉक रेल विद द हेल्प ऑफ फिशिंग फिट ब्लॉक और 4 बोल्ट्स. बोल्ट से भी या फिशिंग बोल्ट से हम क्या करते हैं, उसको एडजस्ट करते हैं या फिक्स करते हैं, राइट. ये सब डेफिनेशन है. फिक्स्ड हिल का भी डेफिनेशन है. इन दिस टाइप ऑफ स्प्लिट स्विच द टंग रेल डज नॉट एंड एट द हिल ऑफ द स्विच बट एक्सटेंड फर्दर एंड इज रिजिडली कनेक्टेड. और ये एक दूसरे से कनेक्ट होते जाता है और आगे बढ़ता जाता है, राइट. Again, a definition of crossing. What is a crossing or frog? Is a device introduced at the point where two gauge faces cross each other to permit the flanges of a railway vehicle to pass from one track to another. सिंपल वर्ड में दिया हो गया है. अगर हम आप क्रॉसिंग तो जानते होंगे कि किस तरह एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक में बिना डीरेल किए हुए ट्रेन को हम दूसरे ट्रैक पे पहुंचा देते हैं, दूसरे रेल पे पहुंचा देते हैं ना, दूसरे पेयर ऑफ रेल पे पहुंचा देते हैं विद द हेल्प ऑफ क्रॉसिंग एंड क्रॉसिंग. क्या है? क्रॉसिंग के सहारे ही. क्रॉसिंग एक ऐसा हमारे रेलवे इंजीनियरिंग में या हमारे रेलवे में, रेलवे ट्रांसपोर्टेशन में क्या है, एक ऐसा चीज़ है जो हमारा क्रॉस एक ट्रेन को दूसरे पटरी पे ले जा सकता है. अ गैप इज प्रोवाइडेड फ्रॉम थ्रू टू द नोज ऑफ द क्रॉसिंग. क्रॉसिंग के नोज पे एक गैप प्रोवाइड करा देता है, ठीक है. चेक रेल्स अस्योर्स द करेक्ट मूवमेंट एंड गाइड्स द व्हील प्रॉपरली. चेक रेल्स क्या कहता है? ये मूवमेंट किसके? ट्रेन के मूवमेंट या व्हीकल वही ट्रैक में ट्रेन के मूवमेंट्स को बरकरार रखता है, ठीक है. क्रॉसिंग कंपोनेंट्स हैं. 2 रेल्स, पॉइंट रेल्स, स्प्लाइस रेल्स आर ज्वाइंट, ठीक है. दीज आर मशीन टू फॉर्म अ नोज. द पॉइंट रेल हैज इट्स फाइन एंड स्लाइटली कट ऑफ द फ्रॉम ब्लंट नोज विद द थिकनेस ऑफ 6 mm. ये सब जो जितने सारे हैं, अ 2 और वी रेल इज प्लेन्ड टू द डेप्थ ऑफ 6 mm, ये सब क्या है? कंपोनेंट्स है. किसका? क्रॉसिंग का. इसीलिए हम बार बार बोल रहे हैं क्रॉसिंग इज an important part of a railway engineering which helps to communicate or being a connectivity to a railway track to another railway track to change the direction or change the track from one to another without any disturbance. This is called crossing. Okay. ये एक फिगर है जिसमें आपको डिटेल्स ऑफ क्रॉसिंग दिया हुआ है. अभी अभी जितने चीज़ हम पढ़े हैं वो सब कुछ आप देख रहे होगे. टो ऑफ क्रॉसिंग, थॉट, राइट हैंड विंग, लेफ्ट हैंड विंग, टीएनसी, गैप, फ्लेयर, पॉइंट रेल, क्रॉसिंग एंगल, फ्लैंज वे, स्प्लेस, फ्लेयर, रेल, हिल ऑफ क्रॉसिंग, रेल डायरेक्शन, फेसिंग डायरेक्शन, है ना. ये सब कुछ क्या है? एक ही फिगर में दी हुई है, राइट. अब मान लो इधर से रेल आ रहा है, फेस ऑफ रेल ये आ रहा है. अब किधर जाना है, बाईं ओर या दाईं ओर, वो आराम से डिसाइड कर लेगा, ठीक है ना. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे क्रॉसिंग टाइप्स, कैसे कैसे टाइप होते हैं क्रॉसिंग के, राइट. तो इस वीडियो के लिए, इस लेक्चर के लिए बस इतना ही. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्रॉसिंग के टाइप पढ़ेंगे और आगे का जानकारी लेंगे. हम धीरे धीरे इसलिए पढ़ रहे हैं अपने सारे यूनिट्स को कि अकॉर्डिंग टू आवर एसबीटी सिलेबस कितने टाइम स्पेंड करना है, क्या बताना है, क्या नहीं बताना है, कितने चीज़ों को लेकर चलना है, ये सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए भी ही सारे वीडियोस बना रहे होते हैं. फिर एक महत्वपूर्ण बात आप लोगों के लिए कि आप लोग इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखिए और बाकी के 12 और 13 वीडियोस को भी देखें, जिससे आप थोड़े थोड़े क्लियर हो जाए. ज़रूरी नहीं है कि एक वीडियो को एक बार देखने से आप क्लियर हो जाए. कुछ चीज़ें छूट जाती है, कुछ चीज़ें तभी समझ में नहीं आता है, कुछ चीज़ें बाद में रिकग्नाइज होती है. तो इस तरह का चलता रहता है हमारे माइंड में, राइट.
तो एक वीडियो को आप 2 बार 3 बार देख सकते हैं, और बार बार देखने से क्या होगा, आपके क्लियरेंस को ज़्यादा पावर मिलेगी, आपको क्लियरिटी ज़्यादा आएगी, है ना। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखिए। और आप फिर से वही बात कि अटेंडेंस बिल्कुल कमेंट बॉक्स पे कीजिए। अटेंडेंस भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे अच्छा कोई नहीं जान सकता है कि अटेंडेंस कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है ना। इस आपसे अच्छा कोई नहीं जान सकता है, इसलिए बी केयरफुल अबाउट योर अटेंडेंस, पुट योर अटेंडेंस और इंश्योर योर अटेंडेंस इन अ कमेंट बॉक्स ओनली, ठीक है। और बाकी कोई भी क्वेश्चन अगर पूछना हो सेशन पे तो आप बखूबी पूछ सकते हो किस पे, लाइव चैट पे, ठीक है। दो रहता है वहाँ पर, कमेंट, लाइक, डिसलाइक, लाइव चैट। लाइव चैट पे आप क्वेश्चन पूछो और कमेंट बॉक्स पे आप अपना अटेंडेंस लगा के रखो, आप फुलफिल हो जाओगे सारे चीज़ से, राइट, ठीक है। थैंक यू फॉर एवरीवन टू वॉच दिस वीडियोज़, एंड टिल देन नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए हम लोग फिर से नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट रूटीन के अनुसार जो क्लास होगा वो करेंगे। थैंक यू फॉर एवरीवन।